Now, what we are going to discuss, let's have a look. We are going to start with introduction of the topic, then definitions, level of prevention, that is primordial prevention, primary prevention, and secondary prevention, and last one is tertiary prevention. Next, we will go with the strategy of prevention, matlab how we are going to follow all these prevention levels, and the last one will be held a quiz for all of you. So be attentive. So next comes is introduction part. So nurses have four fundamental responsibilities followed below. कौन-कौन से main functions होते हैं fundamental responsibilities? First one is promotion of health, prevention of illness, restoration of health, and alleviation of suffering. So today we are going to discuss the second one, that is prevention of illness, or we have categorized it in four categories, that is primordial prevention, primary, secondary, tertiary. So next come is two phases of diseases are pre-pathogenesis and pathogenesis. Anyone have any idea about pre-pathogenesis phase? उसमें क्या होता है pre-pathogenesis phase में? Anyone, कोई भी, कुछ भी चलेगा. चलो, okay. Pre-pathogenesis stage, that is the stage of susceptibility. Means in this stage the disease has not developed but the ground has been laid by the presence of factors that favors its occurrence. एग्जाम्पल है अल्कोहल कंजप्शन. अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है तो उसका क्या हमारे जाके बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लीवर. यानी ये प्री पैथोजेनेसिस स्टेज है जिसमें कि द पर्सन इज ससेप्टेबल ऑफ डेवलपिंग डिजीज. यानी कि ही इज टेकिंग अल्कोहल, लेटर ऑन he will become a patient of cirrhosis of liver. High cholesterol supported by obesity, type A personality, and hypertension is followed by smoking. So that was the pre-pathogenesis phase. Next one comes pathogenesis phase. It is the entry of disease agent in the susceptible human host. कोई डाउट है आपको? समझ आ रहा है? Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes. कोई डाउट हो तो आप मुझे बीच में पूछ सकते हैं. Okay. Next is definition of disease prevention. Activities designed to protect a patient or other members of the public from actual or potential health threats and their harmful consequences. Potential means हो सकता है. Actual means that has been developed, or potential means it may occur in future. Or second definition is prevention is the action aimed at eradicating, eliminating or minimizing the impact of disease and disability. हमें उसको इरेडिकेट कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, जैसे कि हैबिट्स होती हैं हमें उनको अवॉइड करना है. मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी. डिजीज हो गया है, हम उसको अर्ली डायग्नोसिस करके, स्क्रीनिंग करके, पहले पता लगा के उसको जो उसका डिजीज का इम्पैक्ट है और दैट में लीड इनटू डिसेबिलिटी, हम उसको कम कर सकते हैं. ये सब चीजें कैसे होंगी? हमारी प्रिवेंशन से. नेक्स्ट comes with the level of prevention. As I told you, level of prevention we have divided into four stages: primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. What does the word mean primordial? Any idea primordial का meaning क्या है? Okay, primordial means from the beginning of disease or at the earliest. कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हम उसमें इसको डेवलप होने से ही हम रोक देंगे. तो कैसे होगा? जैसे कि हम बचपन में ही हैं, छोटे छोटे बेबी हैं, हम लोग घर में भी देखते हैं, अपना सोसाइटी को फॉलो करते हैं, अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं. तो हम अगर स्टार्टिंग से ही अच्छा हैबिट्स हम इनकल्टेट करेंगे तो हम वो फ्यूचर में हमें इन सब चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा. दैट मीन्स अर्ली स्टेजेस, डेवलपमेंट स्टेजेस, जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जब हम स्कूल जाते हैं और लर्निंग फेज में है बेसिकली, तो उस टाइम में हमें ऐसी हैबिट्स और हेल्थ के लिए प्रमोट करना है जिससे फ्यूचर में हमें ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. हियर इज अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन लेवल ऑफ प्रिवेंशन का, कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन में क्या होगा? रिस्क फैक्टर्स होंगे. पहले कोई डिजीज नहीं है, वी आर प्रोन टू
रिस्क फैक्टर्स है, अगर हम ये चीजें करेंगे तो वी आर प्रोन टू डिजीजेस. देन कम्स प्राइमरी प्रिवेंशन. डिजीज को हम पहले ही स्टेज में रोक सकते हैं, जैसे कि आगे मैं बताऊंगी आपको, जिससे इम्यूनाइजेशन हो जाएगा, ये सारी चीजें हम स्टेप्स लेंगे जिससे कि श्योरिटी हो जाएगी कि डिजीजेस नहीं होंगे. सेकेंडरी में है एसिम्प्टोमेटिक डिजीजेस, कि सिम्टम है, डिजीज है बट अभी एसिम्प्टोमेटिक है. देन कम्स डायग्नोसिस हो जाएगा, उसके बाद क्लिनिकल कोर्स हम फॉलो करेंगे. देन टर्शरी प्रिवेंशन में हमें क्या करना है, हमें डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, ये सब चीजों के इफेक्ट को कम करना है, ताकि जो पर्सन है वो सोशली और इकोनॉमिकली वेल एडॉप्टेड हो जाए. Next, start with a primordial prevention definition. This is a prevention of development of risk factors in a population group which they have not appeared. है ना? इसमें क्या है कि हमें प्रिवेंशन करना है, जिससे रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो डेवलप होने से हमें उनको रोकना है. किसमें? पूरा पॉपुलेशन ग्रुप में, जिसमें विच दे हैव नॉट येट अपियर्ड, वो अभी अपियर नहीं हुआ है. स्पेशल अटेंशन इज गिवन इन प्रिवेंटिंग क्रॉनिक डिसीजेस. एकदम एक्यूट का नहीं होगा, क्रॉनिक डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए. जैसे कि अभी आपने किसी ने भी स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया है, तो अभी सडनली उसको एक्यूट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट लेटर ऑन लाइफ में वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. दैट विल लीड टू क्रॉनिक डिजीजेस. मेन इंटरवेंशन इज हेल्थ एजुकेशन. हमारा जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है उसमें हमें हेल्थ एजुकेशन देना है, जैसे कि हम स्कूल्स में भी, घर में पेरेंट्स भी देते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कोई हमें बताता है कि वी शुड नॉट डू दिस, इससे ये साइड इफेक्ट हो जाता है. तो बेसिकली हेल्थ एजुकेशन इज द मेन इन प्राइमोडियल प्रिवेंशन. In this, efforts are dedicated towards discouraging people from adopting harmful lifestyle habits through which individual and mass education. कैसे करेंगे हम? वो इंडिविजुअल एजुकेशन से भी कर सकते हैं एंड मास एजुकेशन से भी कर सकते हैं. ये हमारा है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, जिसमें कि हमें जो डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स है उसी को प्रिवेंट करना है पॉपुलेशन ग्रुप में. वो हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और मास एजुकेशन से भी कर सकते हैं. अब प्राइमोडियल प्रिवेंशन रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है. पहले हमारा सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पे फोकस था, लेकिन दैट इज प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. is receiving special attention in the prevention of chronic diseases. Example, adult health problem example है उसका obesity हो गया, hypertension. hypertension कैसे हो जाएगा? उसका sedentary lifestyle होगा, ऑयली ज्यादा खा रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, एक्सरसाइजेस कम है, तो इस सब चीजों से हो जाएगा. हैव देयर अर्ली ओरिजिन्स इन चाइल्डहुड बिकॉज दिस इज टाइम व्हेन लाइफस्टाइल आर फॉर्म्ड. जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि जो चाइल्डहुड पीरियड होता है वो हैबिट फॉर्मिंग पीरियड होता है. उसमें एग्जांपल है स्मोकिंग, ईटिंग पैटर्न, फिजिकल एक्सरसाइज. जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो पहले से ही कॉन्शियस होते हैं अपने फिजिकल हेल्थ के लिए. नाउअडेज पीपल आर मोर प्रोन टू और मोर डाइवर्टिंग देयर सेल्फ टू एक्सरसाइजेज, योगा, बिकॉज ऑफ कोरोना, है ना. तो ये सारी चीजें अब हमारा जो यंग जनरेशन है, किड्स हैं, बच्चे हैं, वो देख रहे हैं कि पेरेंट्स आर डूइंग योगा. तो ये हैबिट फॉर्मेशन चाइल्डहुड टाइप में ही हमने अपना प्राइमोडियल प्रिवेंशन की स्टार्टिंग हो जाती है. नेक्स्ट वन इज प्राइमोडियल प्रिवेंशन बिगिंस इन चाइल्डहुड व्हेन हेल्थ रिस्क बिहेवियर बिगिंस. This is actually the time when health risk behavior begins. Parents, teachers and peer group are important in imparting health education to children. ये वो टाइम होता है जब जो बच्चे होते हैं वो एक्चुअली भी हमें भी नहीं पता होता, अनकॉन्शियस माइंड में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम इम्बाइब कर लेते हैं. जैसे कि कुछ फैमिली में एक कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे कि फादर है, ही इज वेरी सॉर्ट ऑफ एंग्री है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं. तो फैमिली में कोई भी हमारा बच्चे में से वो बिहेवियर, वो नेचर इम्बाइब कर लेगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं दे आर वेरी वेरी learner, quick learners, they learn quickly. तो यही is the best time, childhood is the best time जब हम बच्चों में हेल्थ के रिगार्ड में उनको अच्छी हैबिट्स उनमें डाल सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ प्राइमोडियल प्रिवेंशन हम डिस्कस करते हैं. जो नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज हैं, देयर आर सम नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज इन प्राइमोडियल प्रिवेंशन. वी हैव टू फोकस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन, comprehensive policies for discouraging smoking, alcohol and drugs. जो नेशनल लेवल पे भी हमने कुछ देखा है कि बाय द कुछ रोल प्लेस के हेल्प से और कुछ वीडियोस होती हैं
और जैसे कि हम सिनेमा हॉल्स में भी जाते हैं तो उसमें भी पहले एक मूवी टाइप में चलाते हैं, दे फोकस कि हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, उससे कैंसर हो जाता है। तो देयर आर नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू प्रमोट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी रहने के लिए हम कहते हैं कि बी फिजिकली एक्टिव। इफ यू आर फिजिकली हेल्दी, हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। मेकिंग मेजर चेंजेस इन लाइफस्टाइल, हमें चेंजेस भी करने चाहिए, मेजर चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में। दीज ऑल आर फोकसिंग ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी फूड भी हो सकता है, हेल्दी फूड लेना है हमें, और हमें बैड हैबिट्स को छोड़ना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मेकिंग चेंजेस इन लाइफस्टाइल, जैसे कि ज्यादा टीवी पे कंप्यूटर पे बैठ के नहीं देखना है। ये सब चीजें हमें हेल्दी हैबिट्स को अपने अंदर डालना है और प्रमोट भी करना है चाइल्ड, बच्चों को। देन एक देयर इज अ सेइंग लाइफस्टाइल फैक्टर्स के रिगार्डिंग, जीन्स लोड द गन, लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। मींस हमारे जीन्स में भी कुछ हेरिडिटरी होता है, सम फैक्टर्स होते हैं जो रिसेसिव भी हो सकते हैं और डोमिनेंट भी हो सकते हैं। बट इफ लाइफस्टाइल में आपने गलत हैबिट्स को आपने अडॉप्ट कर लिया है तो इट विल डेफिनेटली पुल द ट्रिगर, और उसके बाद वो वापस नहीं आएगा, वो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो इट्स बेटर उसको उसी लेवल पे रोक देंगे। दैट वाज प्राइमोडियल प्रिवेंशन। आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कम्स विद प्राइमरी प्रिवेंशन। अभी तक कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग प्राइमोडियल प्रिवेंशन? इस लेवल में हमें क्या करना है कि हमने एक्शंस लेने हैं वो प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज लेने हैं। जैसे कि in this action are taken before the onset of disease, it signifies intervention in the pre-pathogenesis phase of a disease or health problem। हमने अभी डिस्कस किया ना, pre-pathogenesis phase क्या होता है कि इसमें susceptible है, जो भी पर्सन है इसमें, in this stage the disease has not developed but the ground has been laid by the presence of factors। यानी कि जो factors हैं वो present है बट हमें उनको रोकना है, उसी लेवल पे हमें उनको रोक देना है, हेल्थ एजुकेशन से रोक देना है हमें इनको। इट signifies intervention in the pre-pathogenesis phase of a disease or health problem। It includes a concept of positive health। Primary prevention जो है, this basically focus on positive health, a concept that encourages achievement and maintenance of an acceptable level of health। यानी कि हमारा जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो फोकस करता है किस पे? पॉजिटिव हेल्थ पे। और एंकरेज क्या करता है कि हमें अचीव करना है क्या? एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हेल्थ, जो कि क्या करेगा हमें इस एवरी इंडिविजुअल को एक सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ वो सरवाइव कर सके। इसके लिए सोशली कैसे कि जैसे उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है, एल्कोहलिक हो गया है तो उसको लीवर में प्रॉब्लम हो गई, तो सोशली वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? लोगों को एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेगा, वो लोगों से बात नहीं करेंगे। तो हमें उन सब चीजों को अवॉइड करना। और इकोनॉमिकली कैसे? ये स्पेंडिंग सो मच मनी। इकोनॉमिकली टू फैक्टर्स है, एक तो अल्कोहल शराब पीने के लिए वो पैसे ज्यादा खर्च कर रहा है, दूसरा कि वो सिक हो गया है, अल्कोहल की वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो गई है, तो उसका जो मेडिकल फील्ड में जो एक्सपेंस है उसका वो भी बढ़ गया, उसको अपनी ट्रीटमेंट के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो वो सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ नहीं स्पेंड कर पाएगा। तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए पॉजिटिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, और हमें encourage करना है कि we have to achieve an acceptable level of health that will enable every individual to lead a socially and economical productive life। अब हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसमें भी हमारे दो फैक्टर्स आएंगे। वी विल डिस्कस अंडर टू हेडिंग्स, दैट इज हेल्थ प्रमोशन, नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन में वी विल डिस्कस हेल्थ एजुकेशन, environmental modification, nutritional intervention, lifestyle and behavioral changes। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंडर आएगा इम्यूनाइजेशन, आ गया हमारा कीमोप्रोफिलेक्सिस आएगा, वो भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कीमोप्रोफिलेक्सिस में कौन सा ड्रग्स है और कौन से डिजीज के लिए। यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट्स, जैसे कि विटामिन ए हम देते हैं ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए अवॉइड करने के लिए।
कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए कोई ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स है, उनको भी अवॉइड करने के लिए। लेट्स कम टू नेक्स्ट अप्रोच, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच पीपल, और हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे लोगों पे प्राइमरी प्रिवेंशन के लेवल पे। The WHO has recommended the following approaches for primary prevention of chronic diseases where the risk factor are established. वहाँ पे रिस्क फैक्टर्स हैं, हमें पता है कि रिस्क फैक्टर्स अवेलेबल है और हमें उसको वहीं पे रोकना है। किस लिए? ताकि वो क्रॉनिक डिजीजेस डेवलप ना कर सके। इसके लिए हमारे टू फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन स्ट्रेटजी दैट इज मास मींस ज्यादा लोगों के साथ, काफी मात्रा में लोगों के साथ। नेक्स्ट वन इज हाई रिस्क स्ट्रेटजी। हाई रिस्क स्ट्रेटजी में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन हाई रिस्क स्ट्रेटजी पे है। जैसे कि कुछ लोग हैं जो उसमें जॉब करते कॉल सेंटर्स में, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रेसफुल होता है, या फिर प्राइवेट जॉब्स होती है, वहाँ पे बहुत ज्यादा एक कंपटीशन होता है, यू हैव टू सर्वाइव इन दैट कंपनी। तो जो आपके जो टीम लीडर हो आप, और जो आपसे डाउन पोजीशन पे है वो आपसे ऊपर ना आ जाए, तो देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। और उसको ओवरकम करने के लिए लोग क्या कर देते हैं, दे गो टुवर्ड्स स्ट्रेस कम करने के लिए दे डू स्मोकिंग, दे टेक अल्कोहल। तो ये सब चीजें हमें देखना है कि हाई रिस्क स्ट्रेटेजी के अंडर आती है, कौन कौन उसमें हाई रिस्क के अंडर आ रहा है। अब we will discuss with population strategy. First one is population strategy is directed at the whole population irrespective of individual risk level. अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे कि हमें इतने सारे लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना है। उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि रिस्क लेवल वाली पॉपुलेशन है या नहीं है, हम बेसिकली पूरा पॉपुलेशन पे ही अपना फोकस रखेंगे। For example, studies have shown that even a small reduction in the average blood pressure or serum cholesterol of a population would produce a large reduction in the incidence of cardiovascular diseases. इसमें हम बता रहे हैं कि जैसे हमने एक रोल प्ले लिया या फिर हमने एक ऑडियो विजुअल एड कोई फिल्म बना के हमने उसको स्कूल्स में, कॉलेजेस में या फिर अपने सोसाइटी में हम उसको डिस्प्ले किया, और उसमें हमने क्या बताया कि वी वी हैव टू टेक avoid factors leading to uh, factors that lead to higher serum cholesterol level, high BP, high blood pressure, इन सब चीजों की तरफ जाने वाले जो हमने रोका लोगों को रोल प्ले और ऑडियो विजुअल एड्स के फिल्म्स दिखा के कि we should avoid all these things. The population approach is directed towards socio-economic behavior and lifestyle changes. अब जो हमारा population approach है, हम उसमें क्या करते हैं, क्या बेसिकली हमारा मोटो होता है, we have to focus on socio-economic behavioral and lifestyle changes. लाइफस्टाइल चेंजेस हमने देखा, हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना है। जैसे कि लाइफस्टाइल में हो गया, हम डेली 9 to 5 का ऑफिस है, ऑफिस से वापस आके हमने खाना वाना खाया, फिर टीवी बैठ के टीवी देखते लगे। इस दूसरा लाइफस्टाइल ये है कि हम ऑफिस से आए, हमने घर वालों से डिस्कस किया, डिनर किया, इवनिंग वॉक के लिए निकल गए फैमिली के साथ, फैमिली को भी टाइम मिल गया और हमारा जो खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और दैट विल एड टू आवर फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। और उससे हमारा क्या होगा कि जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ये सारी चीजें, ओबेसिटी हो जाती है, बैठे बैठे ऑफिस में भी बैठे, घर आके भी खाना खा के बैठ गए, वो सब चीजें हमारी अवॉइड हो जाएंगी। तो बेसिकली इससे पता चलता है कि इट विल ओवरऑल जो पॉपुलेशन को हमने एजुकेशन दिया है, हेल्थ एजुकेशन रोल प्ले दिया है, उससे जो इंसिडेंट्स है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के, हाइपरटेंशन के, बहुत जल्दी कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वन। अब आ गया हाई रिस्क स्ट्रेटेजी, सेकंड वन। फर्स्ट हमारा था पॉपुलेशन मास स्ट्रेटेजी, दीज आर अप्रोचेस, ये हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के अप्रोचेस। नेक्स्ट आ गया हमारा हाई रिस्क स्ट्रेटेजी, इसमें क्या हो जाएगा, द हाई रिस्क स्ट्रेटेजी एम्स टू ब्रिंग प्रिवेंटिव केयर टू इंडिविजुअल एट स्पेशल रिस्क। इसमें हमने क्या करना है कि प्रिवेंटिव केयर देना है, और वो भी किसको, टू दोज इंडिविजुअल जो कि स्पेशल रिस्क पर है। दिस रिक्वायर्ड डिटेक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में है तो हम डिटेक्ट करेंगे, है ना, सर्वे करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उससे हमने डिटेक्ट कर लिया कि these individuals are at high risk by the optimum use of clinical methods. Then primary prevention is a holistic approach.
होलिस्टिक तो हम सबको पता है ना, होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है? बताओ, कौन बताएगा होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है? मैम हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम होलिस्टिक मतलब जो कि मैम जरूरी मस्ट जो होता है, होलिस्टिक मतलब वो। Holistic approach means the treatment of whole person taking into account mental and social factors. यानी कि हमें उसके दोनों फैक्टर्स को फोकस करना है, मेंटल एंड सोशल फैक्टर्स, रेदर देन जस्ट द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज। हमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करना, उसके डिजीज पे फोकस नहीं करना है, बल्कि हमें उसको सोशल फैक्टर्स और मेंटल फैक्टर्स को भी हमें अपने दिमाग में रखना है। देन मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, हम इसको करेंगे कैसे? क्या हमारा इंटरवेंशन रहेगा? नंबर वन इज हेल्थ प्रमोशन एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक प्रमोशन। लेट्स डिस्कस हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या आता है। हेल्थ प्रमोशन में आ जाएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड thereby improve their health। क्या करना है इससे? हम, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को अनेबल करेंगे, वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इंक्रीज करेंगे अपना कंट्रोल, किस पर? जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ है, एंड देयर बाय इम्प्रूव देयर हेल्थ। ठीक है। देन कम्स हेल्थ प्रमोशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द होस्ट। अब होस्ट है, एजेंट, हमें डिजीज का ट्रायड पता है, देयर विल बी एजेंट, होस्ट एंड वेक्टर हो जाएगा उधर। तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि हेल्थ प्रमोशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द होस्ट, हमने होस्ट को ही ताकतवर बना देना है। द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव हेल्थ। हमें बेसिकली हमें उसमें कंट्रोल करना है, किस पे करना है? डिटर्मिनेंट्स पे करना है। हमने स्ट्रेंथन करना है अपने होस्ट को, और हमने उसको कंट्रोल का, उसको इंक्रीज करना है पावर को। अब main aims of health promotion is to enable people to increase control over health to improve the overall health। अब हम इससे क्या होगा हमारा कि जो हम ये कंट्रोल करेंगे डिटर्मिनेंट्स पे, होस्ट को हम अपना स्ट्रॉन्ग बना देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ। द एम कैन बी अचीव बाय द फॉलोइंग इंटरवेंशन। अब हम ये अचीव कैसे करेंगे? हमारा अप्रोच क्या रहेगा? हेल्थ एजुकेशन, environment modification, behavioral changes, lifestyle changes, and nutritional intervention. Let's discuss one by one. Health education to improve healthy habits and health consciousness in the community। हम उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे, हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर हेल्दी हैबिट्स, है ना? हेल्दी हैबिट्स हो जाएंगे, हेल्दी फूड खाना है, जैसे कि हम जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, हाई हाई शुगर इनटेक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पे इतना हायर शुगर कंटेंट होता है, जितना हम 1 वीक में जाके लेते हैं वो उतना 1 बॉटल ऑफ कोको कोला में होता है। इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड ऑफ द कम्युनिटी, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स हमने कम्युनिटी के इम्प्रूव करने हैं। इवन जो हम, जब भी हम कोई पैकेट ऑफ चिप्स खाते हैं या बिस्किट खाते हैं, हम वो भी कभी भी नहीं देखते कि उसका न्यूट्रिशनल एक कंटेंट पे लिखा होता है उसमें कि उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू कितना है। आप कभी भी घर पे जाके देखना, अभी कोई भी पैकेट उठा के देखना, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसके कंटेंट क्या है, वो हमें पढ़ना चाहिए हमेशा उसको कंज्यूम करने से पहले। तो हमें हेल्थ एजुकेशन देना है। लिखा तो होता है, एक मेन होता है एडवर्टीजमेंट, इसमें ये है हाई कंटेंट ऑफ फाइबर है, लेकिन हमें उस पे नहीं करना। दे विल एडवर्टाइज टू सेल देयर प्रोडक्ट, पर हमें जो साइड में कॉलम होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू या फिर सप्लीमेंट या फिर कंटेंट करके, हमें उसको पढ़ना चाहिए। हेल्थ, फिजिकल इन्वायरमेंट, हाउसिंग इंप्रूव करना है, हमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, वाटर सप्लाई जो है अपना इधर बॉयलेट या फिर आरओ होना चाहिए, कहाँ से आप पानी ले रहे हैं। एक्सक्रीटा डिस्पोजल होना चाहिए, ओपन डेफिकेशन नहीं होना चाहिए, कवर होना चाहिए। देयर शुड बी ए प्रॉपर, जो हमारा वॉशरूम है प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। और गुड वर्किंग कंडीशन मीन्स जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, एटमोसफेयर हमारा, जॉब प्रोफाइल है जहाँ पे भी हम वर्क कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट भी हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कोल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, पेंट का जो काम करते हैं, एरोजोल्स होते हैं वहाँ पे, तो वी शुड यूज प्रॉपर मास्क ओवर देयर। वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, एरोजोल से भी फ्यूचर में जाके कैंसर भी हो सकता है, एस्बेस्टोस होता है, वो भी बहुत हार्मफुल होता है। पीरियोडिक सेलेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ रिस्क पॉपुलेशन,
ये भी हमारा पार्ट ऑफ डाटा कलेक्शन में है। जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो हमें पीरियोडिक सेलेक्टिव एग्जामिनेशन करना है किनका, जैसे कि अभी मैंने बताया पोल, जैसे हमने डाटा कलेक्ट किया कि हाँ भाई आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो ही विल से कि मैं पेंट का काम करता हूँ, तो दैट इज कम इन द सेलेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ रिस्क पॉपुलेशन। वो जो पर्सन है जो भी कॉल फैक्ट्री में या फिर पेंट फैक्ट्री में या फिर ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे शीशे का कांच का काम होता है, तो दीज कम, all these people come under selective examination of risk population में है। हमें उनको properly examine करना है, उनका history data collect करना है, फिर देखना है कि कोई they are not going toward developing a disease, उनको हेल्थ एजुकेशन देना है कि जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसने आपका जो भी वर्किंग एटमॉस्फेयर है उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर है, वो आपका रूटीनली ईएसआई कार्ड आपका बनवाया हुआ है, वो आपको सारी फैसिलिटीज देता है। वी हैव टू एजुकेट देम रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्टर्स। ओके, यू नो जस्ट 30 minutes of exercise a day can reduce depression by 50%। मैं भी खुद भी जिम जाती हूँ, और जब मैं जिम जाती हूँ, अभी नहीं जा रही हूँ कोरोना में, वैसे जाती हूँ, तो जब मैं जिम जाती हूँ 50%, तो क्या मेरा तो 100% ही स्ट्रेस आउट हो जाता है ना। एक्सरसाइज करने से एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, उससे हमारा Yes, ma'am. Yes. है ना, बॉयज बेसिकली Yes, ज्यादा ma'am. जानते होंगे, जब भी जिम जाते हैं आपको कितना, जिस दिन जिम जाती हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत खुश रहती हूँ द डे लॉन्ग, और जब मैं नहीं जाती हूँ तो देयर इज, मतलब वो हार्मोन मेरा तो रिलीज ही नहीं होता है। चलो नेक्स्ट, Active भी रहते हैं मैम. एक्टिव रहते हैं, दैट्स गुड पॉइंट। नेक्स्ट कम टू स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अभी हमने पहले कौन सा डिस्कस किया था, हेल्थ प्रमोशन वाला क्या था, ये मोड ऑफ इंटरवेंशन है हमारा। अब नेक्स्ट कम टू स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब ये कैसे आ जाएगा, एफर्ट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। कोई आइडिया कौन सा स्पेसिफिक डिजीज है जिससे हम अपने आप को पहले ही बचा सकते हैं, कोई भी बोलो। मैम कोई भी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हम मतलब प्रिकॉशन लेके उससे वेरी गुड, बच हम उसका सकते हैं। वैक्सीन लगवा रहे हैं ना, तो दैट इज द स्पेसिफिक ma'am. प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोना वायरस। क्या कर रहे हैं, हम उसका वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो दैट इज अ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्पेसिफिक वायरस। तो एफर्ट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज, और हम कह सकते हैं द प्रोविजन ऑफ कंडीशंस फॉर मेंटल एंड फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग। प्रोविजन है कौन सा कंडीशंस का, किस लिए, फॉर मेंटल एंड फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इन अ ग्रुप, या वो ह्यूमन बीइंग के लिए रिगार्डिंग में बात कर लो या पूरे ग्रुप के लिए बात कर लो कि क्या चीज है। ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये एक तरीका है वो कंडीशंस नॉर्मल बनाने के लिए, ताकि वो बंदे हैं या फिर जो पूरा ग्रुप है वो मेंटल एंड फिजिकल फंक्शनिंग कर सके। इट इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस एंड केयर ऑफ इंडिविजुअल। और ये क्या क्या है इसके अंदर, हमारा है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हमने हेल्थ को प्रमोट करना है, हेल्थ को एक ऑप्टिमम लेवल पर लेके जाना है, सिकनेस को प्रिवेंट करना है, और जो केयर इंडिविजुअल्स है उनका केयर करना है। अब इंटरवेंशंस क्या क्या हो जाएंगे, हमने क्या क्या स्टेप लेने हैं इसमें। फर्स्ट वन इज इम्यूनाइजेशन, है ना, सबको पता है ना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, chemoprophylaxis, protection against occupational hazards, protection against accidents, control of general environment। general environment बेसिकली हमारा खुद का, हमारा हाउस का, हमारा सोसाइटी का, हमारा लोकेलिटी का। अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस, किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है, किसी को कोई स्पेसिफिक फूड मटेरियल है। कुछ बच्चे अभी रिसेंटली एक एपिसोड हुआ था, मेरे एक कजन है उसका बेटा कुछ खाता नहीं था, उसको बहुत ज्यादा कफ था, वो डॉक्टर के पास लेके गया कि उसने पूछा कि भाई क्या हो गया, बहुत कफ है, उसको 2 मंथ से ठीक ही नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने क्या रिवील किया कि चिप्स के पैकेट आते हैं बेटा, लेज है, कुरकुरे, वो सब कुछ खाता था, खाना कम खाता था वो बच्चा। तो जब डॉक्टर ने रूल आउट किया कि जो जितने भी ये पैकेट के मटेरियल्स होते हैं इनमें एक कलर डलता है, एंड दैट चाइल्ड इज स्पेसिफिकली एलर्जिक टू दैट एडिटिव फूड कलर, तो हमें उन चीजों को अवॉइड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट सच एलर्जेंस। नेक्स्ट, यूज ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन, ये फर्स्ट वाला पॉइंट था हमारा, बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर वैक्सीन, हमें इन सब के लिए वैक्सीनेशन बचपन में ही करा लेते हैं, 9 टू अपने 12 मंथ्स तक, फिर 5 इयर्स की एज पे भी होता है, फिर 10 इयर्स की एज पे भी होता है। नेक्स्ट कम इज कीमोप्रोफिलैक्सिस, टेट्रासाइक्लिन फॉर कॉलेरा,
डेप्सोन फॉर लेप्रेसी, क्लोरोक्विन फॉर मलेरिया। ये अपना कीमोप्रोफिलेक्सिस है, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स हाउ वी आर गोइंग टू प्रिवेंट दीज। यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए फॉर चिल्ड्रन, आयरन, फॉलिक एसिड टैबलेट्स फॉर प्रेग्नेंट मदर। बताओ फॉलिक एसिड क्यों देते हैं प्रेग्नेंट मदर को, ये कैसे हेल्प करेगा डिजीज प्रिवेंशन में? बोलो फॉलिक एसिड देने से क्या हो जाएगा, कोई भी? ओके, फॉलिक एसिड हम प्रेगनेंसी में इसलिए देते हैं, प्री कंसेप्शन टाइम में ही दे देते हैं। कुछ कपल्स को पहले से ही पता होता है कि जैसे वी दे आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, दे स्टार्ट विद द फॉलिक एसिड, और आइडली इट शुड बी गिवन फॉर द फर्स्ट स्टार्टिंग 3 मंथ्स। क्यों स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ही दिया जाता है कि जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट है उसको लेने से जो बेबी होगा, उसको इन्फेंट होगा, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नहीं होंगे। स्पाइना बाइफिडा हो गया, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, वो उन मदर्स को नहीं होते, उनके बेबी को, जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेते हैं। और 3 मंथ्स तक ही क्यों देते हैं? क्योंकि न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, स्पाइन फॉर्मेशन होता है, वो पहले 3 मंथ्स में पूरा हो जाता है। नेक्स्ट कम प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, यूज ऑफ हेलमेट, सीट बेल्ट एटसेट्रा। अगर आपने हेलमेट पहना है तो हेड इंजरी नहीं होगी, सीट बेल्ट पहना है तो आपको चेस्ट में स्टैपिंग नहीं होगा, और आप फॉरवर्ड मिरर से बाहर नहीं जाओगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ऑक्यूपेशनल एरिया में आपको क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस में हमने डिस्कस किया है, अगर किसी फूड से, स्पेसिफिक फूड से एलर्जी है तो वी हैव टू अवॉइड। अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, अभी जैसे ये सीजन है 1 मंथ पहले जिसमें हम गेहूं निकालने का काम चल रहा था, तो जो अस्थमेटिक लोग होते हैं वो इस टाइम बाहर उनको निकालने के लिए कम ही बोलते हैं, विंडोज वगैरह बंद रखने के लिए बोलते हैं, यूज ऑफ मास्क बोलते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी होता है तो हमें उसके लिए भी, अगर हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आपने बेसिकली देखा होगा, वो बाहर जब भी जाते हैं दे यूज मास्क, कोरोना से पहले से ही करते हैं, तो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट कम्स हमारा पे है सेकेंडरी प्रिवेंशन, आ गया अब हमारा। प्राइमोर्डियल हमने कर लिया, स्टार्टिंग में ही बिल्कुल अर्ली में, चाइल्डहुड में हैबिट फॉर्मेशन जब होता है तभी हमें हेल्थ एजुकेशन से, बेटर पेरेंटिंग से, पेयर ग्रुप अपना देखना है कि फ्रेंड सर्कल भी सबको हमने अपना अच्छा रखना है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जितना अच्छा हमारा एटमॉस्फेयर होगा उतनी अच्छी हमारी हेल्दी हैबिट्स होंगी। बिल्कुल हो गया, प्राइमोरियल मींस एट द अर्लीस्ट टाइम। फिर हमने किया प्राइमरी प्रिवेंशन, दैट वाज पॉजिटिव हेल्थ, ऑप्टिमम हेल्थ लेवल को हमने उसमें मोटिव लेके चला कि रिस्क फैक्टर है लेकिन हमें उसको पहले ही रोक देना है। उसमें हमने क्या क्या लिया, मास स्ट्रेटेजी लिया, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ले लिया, उसमें हेल्थ एजुकेशन भी आ गया, इम्यूनाइजेशन भी आ गया, हमारा सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद अब हमारा आ गया है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अभी तक कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। चलो आगे बढ़े अब। Next come with secondary Yes, ma'am. prevention. It is defined as an action which halts the progress of a disease at its incipient stage and prevents complications. यानी कि यहाँ पे डिजीज जो है हमारा है लेकिन हमें उसको हॉल्ट करना है, उसको रोक देना है, उसकी प्रोग्रेस को, ऑफ अ डिजीज एट इट्स स्टार्टिंग की स्टेज पे ही उसको हमने रोकना है। इसलिए ताकि वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हम उनको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे स्पेसिफिक इंटरवेंशंस क्या होंगे, हमें क्या स्टेप्स उठाने होंगे। नंबर 1 इज अर्ली डायग्नोसिस एंड नंबर 2 इज रेफरल। अर्ली डायग्नोसिस में हमारा आ जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो जाएगा, पेप स्मीयर टेस्ट हो जाएगा, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन एटसेट्रा एंड ट्रीटमेंट। रेडियोग्राफिक एग्जाम्पल में मैं एग्जामिनेशन में जैसे चेस्ट एक्सरेज है उसमें हमने रिवील किया है कि देयर आर पैचेस, तो दे मे बी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के भी हो सकते हैं, तो हमें अर्ली स्क्रीनिंग से ही पता चल जाएगा। पेप स्मीयर हमारा सीए ऑफ कैंसर ऑफ सर्वाइकल के लिए भी होता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, बेसिकली 35 इयर्स के बाद हमें इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए। 35 इयर्स के बाद देयर इज चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट कम इज रेफरल। सेकेंडरी प्रिवेंशन अटेम्प्ट टू अरेस्ट द डिजीज प्रोसेस। अब वो बता रहे हैं कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमें करना क्या है और कैसे होता है। इसमें इट अटेम्प्ट्स टू अरेस्ट द डिजीज प्रोसेस। अरेस्ट का मतलब है
कि उसको पकड़ लिया है उसने डिजीज प्रोसेस को वहीं पे. रिस्टोर हेल्थ बाय सीकिंग आउट अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज. हेल्थ को रिस्टोर करना है. कैसे करना है? अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज एंड ट्रीटिंग इट बिफोर इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस. ये जो डिजीज प्रोसेस हमारा चल रहा है, अगर हम उसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे, उसको अर्ली डायग्नोज नहीं करेंगे, तो जो उसके इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में जो आ जाएंगे, हम उनको फिर रिवर्सिबल नहीं हो पाएंगे. वो उनको हम पहले वाली स्टेज में नहीं ला सकते. तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको वहीं पे रोकने की कोशिश करेंगे. और एंड रिवर्स कम्युनिकेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. और दूसरा क्या चीज है कि वो कम्युनिकेट ना कर जाए दूसरे लोगों के लिए. तो इसके लिए बेटर क्या होता है कि जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं. जैसे कि हमें पता है कि एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, एक वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तब तक he can spread the infection to others. But as soon as treatment has been started, तो कुछ टाइम के बाद he will not be able to transfer the disease to others. But still we have to, हमें लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मास्क लगाना छोड़ दे कि अब तो मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है. प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन होगा, ये चांसेस कम है, बट आपको जितने भी क्रॉस इन्फेक्शन वाले फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने सारे फैक्टर्स को फॉलो करना है. मास्क लगाना है, अपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है. नेक्स्ट इट प्रोटेक्ट्स अदर इन द कम्युनिटी फ्रॉम एक्वायरिंग द इन्फेक्शन. ये आ गया कम्युनिकेबिलिटी में. एंड दस प्रोवाइड एट वंस सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर द इन्फेक्टेड वंस and primary prevention for their potential contacts. Potential contacts मतलब बिल्कुल पास वाले जो contacts हैं उनको तो primary prevention हो जाएगा. Secondary prevention to others, risk वाला आ गया ना इसमें secondary prevention में, कि कौन कौन risk पे हो जाएगा. जो जो उसके contact में आते हैं, उसके colleagues हो गए, और अगर वो private bus का इस्तेमाल कर रहे हैं तो passengers हो गए. These are the secondary persons who, secondary mode of secondary prevention to the person who are coming in contact with the person who is being infected. अब इस पिक्टोरियल